Welcome again to Rendezvous with English. Do you know what is rendezvous? Rendezvous, although मैंने पहले बताया, once again I would like to tell you, rendezvous is having face-to-face conversation. आमने सामने बैठकर बात करना is rendezvous. As I am talking to you now, as I am discussing things with you now, so that is rendezvous. So rendezvous is having face-to-face conversation, and in this rendezvous with English, हम क्या पढ़ रहे हैं? Voice. We are studying voice. Okay, so today we'll be studying past perfect tense, right? We are going to study past perfect tense. Past perfect tense में क्या होता है? Had होता है, plus been होता है, plus verb की third form होती है ना? Had been plus third form of the verb. So if you want to be as fluent as I am in speaking English, you can revert to the previous episodes of mine where I have given a long list of episodes on pronunciation, जिसमें साउंड्स प्रोनाउंसिएशन के सबसे पहले आप रेफर करिए, उनसे साउंड्स बोलना सीखिए, डिफरेंसेस सीखिए साउंड्स में, and then you move on to the certain sentences which have been specially designed for you to speak and learn. Because if you will speak those sentences on a regular basis, you can learn to speak English properly first. जहां पे भी errors होंगे वो दूर हो जाएंगे, and after removing those errors you can start speaking English. But mind you, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, इंग्लिश स्पीकिंग का कोई शॉर्टकट नहीं है. हर एपिसोड में मैंने बात कही है. अगेन आई एम सेइंग दैट देयर इजंट एनी शॉर्टकट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश. You can only learn to speak English if you speak English on a regular basis every day. Every day you have to speak a few sentences. Because if you don't speak, you won't be fluent. आप सीख तो जाएंगे बोलना, समझते तो सभी हैं, है ना? जो भी पढ़ा हुआ है इंग्लिश वो समझता है. But are fluent तभी होंगे when you will be speaking on a regular basis. So let's do the past perfect tense. Mrs. Sinha had purchased a plot. So सभी लोग प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिनको घर बनवाने होते हैं वो घर के लिए प्लॉट खरीदते हैं. Then when they get money, they purchase. When they get money, they construct the house. So ये क्या है? Subject and object interchanging the position, as I have already told you. The object, right? They will be interchanging their position. आपस में जगह बदलेंगे, बदले क्या आ जाएगा? First will be using plot. Had will be used irrespective of the object. So object singular है या plural है, had ही use होगा. उसके बाद क्या use करना है? Been. Verb perfect tense में किसी भी present, past or future, in any perfect tense, whether it is present perfect, past perfect or future perfect, the verb will always be in third form. ठीक है? So already है third form में, और लिख दीजिए. बाय एजेंट लिख लीजिए, किसने खरीदा? मिस्टर सिंहा. ठीक है? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, फिर हैड लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे. वर्ब ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, देन वी विल बी राइटिंग द एजेंट बाय यूजिंग बाय. राइट? नाउ नेक्स्ट सेंटेंस. Warner had hit a 50. तो hit आपको बताए थे कुछ वर्ड्स, हिट, पुट, कट, ये सब कुछ वर्ड्स हैं जो उनके फॉर्म सेम रहते हैं, मतलब इनके फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों सेम रहते हैं. So Warner had hit a 50. Do you know who is David Warner? Warner is a player of the Australian cricket team. He is a very flamboyant player. He is a very perfect player. So a 50 should come first. अब had ही यूज होना है क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का सिंगुलर और प्लूरल से कोई लेना देना है नहीं पास्ट परफेक्ट टेंस में. तो 50 हैड, फिर क्या लगाना है? यू हैव टू यूज बीन. फिर वर्ब ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, ये तीनों फॉर्म सेम रहते हैं. 50 हैड बीन हिट किसने? बाय वॉर्नर. आई होप इट इज क्लियर. As we change the position of subject and object,
So similarly, we have changed the position of subject and object. ये object था, object यहाँ ले आए, फिर helping verb, फिर एक और verb, फिर main verb, okay. तो इस तरीके से जो simple assertive sentences हैं, उनको हम change करेंगे, will be changing them. Next, let's see if the sentences with double objects. ठीक है, तो I hope you were learning. थोड़ा सा practice भी करिएगा. Because practice makes a man perfect. If you will take grammar book and after studying these topics, after studying these chapters, you practice well, then definitely you can succeed. आप अच्छे से सीख सकते हैं, आप अच्छा कर सकते हैं. समझ में आई बात? कोई भी नेम ले लें. सृष्टि gave her friend a bouquet. Bucket नहीं, bouquet. Bouquet क्या होता है? A bunch of flowers, है ना? जो अच्छे से पैक गिफ्ट रैप, मतलब उसको एक बंच बनाकर उसको डेकोरेट करके, that is called a bouquet, not pocket. Okay? Mostly इसको लोग bucket भी पढ़ लेते हैं, बच्चे जिनको नहीं मालूम होता है, no problem. I am here to tell you, sort out everything. Along with this grammar episode, I will tell you how to correctly pronounce things also. So, gave her friend a bouquet. Now, Shrishti is the subject. क्या दिया? ऑब्जेक्ट. और किसको दिया? अपनी दोस्त को दिया. तो ये भी ऑब्जेक्ट है. अब हमने क्या बताया था कि जो चीजें दी जाती हैं, जो चीजें हैंड ओवर की जाती हैं नॉन लिविंग थिंग, इसमें एक थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है जो सारे टेंसेस पढ़ाने के बाद हम बताएंगे. बिकॉज इन ग्रामर एवरी रूल हैज एन एक्सेप्शन. सो ये रूल जो बता रहे हैं इसका एक्सेप्शन है, जो कि लास्ट टाइम. ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस आपको बताएंगे. ठीक, तो gave her friend a bouquet. So bouquet क्या है? जो चीज दी जाती है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है, जो रिसीवर होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है, तो रिसीवर हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो चीज हैंडओवर की जाती है, खरीदी जाती है, बेची जाती है, फेंकी जाती है, बनाई जाती है, और मीन्स ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स आर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द रिसीवर्स आर लिविंग बीइंग्स, सो दे आर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ये हमेशा ध्यान. अब हम क्या करेंगे? इन दोनों में से किसी एक से बना लें. तो पहले तो हम लिविंग बीइंग से ही, नॉन लिविंग से ही बनाते हैं, जो जैसे बनाते. तो क्या दिया गया? अब ओके, इसमें थोड़ा सा टेंस चेंज कर लें, क्योंकि हम पास परफेक्ट टेंस कर रहे हैं. एंड गिवन लिख लेते हैं. तो बुके हैड बीन, I'm sorry for that. Apologies. I wrote it wrong. Apologies for that. Apologies का मतलब होता है माफी. ठीक है. तो बुके हैड बीन गिवन, क्योंकि हम क्या करते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं. तो बुके हैड बीन गिवन किसने दिया? बाय सृष्टि. किसे दिया? टू हर फ्रेंड. जिसको मिल रहा है वो बाद में आ जाएगा. ठीक, A bouquet had been given by Shrishti to her friend. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A bouquet had been given to her friend by Shrishti. दोनों में से एक कोई भी लिखिए, दोनों सही है. तो this was from the direct object. Now we can also, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो ये है ही, और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की ही तो पोजीशन हम चेंज करते हैं. तो यहाँ पर कुछ ऐसे तीर लगा देते हैं, 1 से 2. एक तीर दो शिकार. तो एक तीर दो शिकार है यहाँ पर. तो एक तीर दो शिकार. तो जब दो शिकार हैं तो दूसरे शिकार से भी हम बना सकते हैं, है ना? पहले शिकार से बनाया, फिर दूसरे शिकार से ही बना सकते हैं. तो शिकार तो हो ही चुका है, तो शिकार हो चुका है, तो शिकार से बना लो पहले. हर फ्रेंड, तो ऑब्जेक्ट के बाद पहले क्या आना है? वर्ब आनी है. फिर क्या आना है? बीन आना है. फिर क्या आना है? गिवन आना है. इतना तो वही रहा. ठीक, क्योंकि हमने सेकंड ऑब्जेक्ट से बनाया, इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से. हर फ्रेंड हैड बीन गिवन. अब क्या दिया गया? जो दिया गया पहले वो आएगा. किसने दिया? बाय सृष्टि. ठीक है, तो फ्रेंड हैड बीन गिवन अ बुके बाय सृष्टि. बॉकेट नहीं, बुके.
फ्रेंड हैड बीन गिवन बुके बाय सृष्टि। इस तरीके से हम बनाएंगे। ठीक, समझ में आ गया आपको? फ्रेंड हैड बीन गिवन बुके बाय सृष्टि। दिस इज हाउ विल बी मेकिंग फ्रॉम द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ तक देखिए बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर चेंज हो जाएगा। जो ऑब्जेक्ट रिसीव किया जा रहा है यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा फिर एजेंडा। राइट, एक और सेंटेंस देखिए इसमें का, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस करते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। हाँ, 12th फेल देखी है आप लोगों ने? नहीं देखी तो देखिएगा। इफ यू हैव नॉट सीन द मूवी 12th फेल, यू मस्ट वॉच बिकॉज इट शोज हाउ मच डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। 12th फेल नाम है, बहुत अच्छी आईएएस एस्पिरेंट्स के ऊपर मूवी बनाई गई है, जहां पर दिखाया गया है कि ये जो हाई रैंकर्स हैं सब बड़े घराने से और बहुत पढ़े लिखे घरों से और नहीं आते हैं, बट दे कम फ्रॉम सच फैमिलीज वेयर eating or surviving on 2 meals per day is very, very difficult. There are so many complexities. There are fights in the families, in the village, and those who are working honestly are not allowed to work honestly. तो उन रीजन्स में से एक वहां के एक स्टूडेंट की कहानी है, एंड इट इज वंडरफुली वोवेन, और ये रियलिटी है। मूवी के एंड में आपको उस एस्पिरेंट से भी मिलवाया जाएगा, तो उसको सीखिए। इट विल हेल्प यू इन गिविंग सम मोटिवेशन। नहीं देखी तो देखिए 12th फेल। आई रिकमेंड दिस मूवी टू यू। ओके, यू विल रियलाइज हाउ मच हार्ड वर्क इज नीडेड, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। Rakesh had handed me his cooler. उसने मुझे अपना कूलर दिया। तो इसमें ये सब्जेक्ट है, डबल ऑब्जेक्ट्स है, मी है और हिज कूलर है। ठीक, पहले हम इस कूलर से बना लेते हैं। हिज कूलर हैड बीन हैंडेड, इसको दी, इस कूलर हैड बीन हैंडेड बाय राकेश टू, ठीक, this cooler had been handed by Rakesh to me. ठीक, अब हम ये तो ये था तीर, ये तीर से दो शिकार थे, तो ये दो शिकार थे, अब दूसरे शिकार से बनाओ। तो मी को किसमें चेंज करेंगे? आई हैड बीन हैंडेड, क्या? हिज कूलर किसने दिया? बाय राकेश। सिंपल, I had been handed his cooler by Rakesh. So any of these objects you can make. पहले हमने जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था उससे बना लिया, फिर by Rakesh to me लिख लीजिए, ये handed to me by Rakesh। फिर हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना लिए, I had been handed, यहाँ तक बिल्कुल सेम है। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा जो दिया गया, उसके बाद एजेंट आएगा, बस यही फर्क है। ठीक, I hope you have understood. Now let's move towards the interrogative sentence. इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी देख लें, इजी है, आपको बता भी चुके हैं हम कैसे करते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें डिफरेंस, हैड मोहित हंटेड अ डियर एंड व्हेन हैड मोहित हंटेड अ डियर, इसमें किसका अंतर है? केवल क्वेश्चन वर्ड का ही तो अंतर है, बाकी तो पूरा सेम है। हैड मोहित हंटेड अ डियर, व्हेन हैड मोहित
hunted a deer. Now, I have already told you there are two kinds of interrogative sentences, one beginning with a helping verb, the another beginning with a question word. Now, first one is beginning with a helping verb, and the second one is beginning with a question word. But after the question word, the sentence structure is the same. So, as per the rule of changing from active to passive, this is the subject and this is the object, right? Subject and object interchange their positions. So, but दिस इज अ क्वेश्चन. सो फर्स्ट जब हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब भी पहले आएगी. पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, हैड ही यूज होगा. तो यहाँ पर हैड ही आएगा. फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट. फिर क्या आएगा? बीन. ये हमेशा ध्यान रखिएगा जी, क्वेश्चन में सब्जेक्ट के बाद बीन आएगा. जैसे कॉन्टिन्यूस है तो उसमें भी बीइंग होता है, तो वो सब्जेक्ट के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन. ठीक है. Had the deer been, verb is already in third form. Been hunted, किसने? By क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले. ठीक. फिर when had मोहित hunted a deer. अब when had मोहित के बाद ये हमने बनाया था, पहले इसको ही लिख लेते हैं. चलो, जो ऊपर सेंटेंस लिखा था वही लिख दिया भाई. सेंटेंस तो वही था, हैड मोहित हंटेड ए डियर, हैड मोहित हंटेड ए डियर. तो इसका ये बना, तो ये लिख दिया पहले से ही, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया. तो कितनी आसानी से. यही हमने कहा, सेंटेंस स्ट्रक्चर पे फोकस करिए. इट इज वेरी इजी. क्वेश्चन मार्क लगने से कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जा रहा है. इट्स नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट एट ऑल. The sentence verb beginning from a helping verb, so we have used a helping verb in the beginning. क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए जो भी ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ गई. पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हैड ही रहनी है, तो इतना पार्ट वैसे ही लिख दिया. उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, सिंपल. समझ में आई बात? एक डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस देख लें. थॉर का नाम सुना है? Have you heard the name of Thor? Avengers, supernatural पावर इसके पास है, इमेंस पावर, या यू कैन के सुपर हीरो जो बोलते हैं. जैसे हमारे स्पाइडरमैन, हमारे लोकल कॉमिक्स के सुपर हीरो हमारे जमाने के क्या होते थे? चाचा चौधरी, साबू, और क्या सुपर कमांडो ध्रुव, और एक और था ना, से क्या नाम था? नागराज, है ना? याद आए हमारे. और टीवी के, मीडिया के, दुनिया के जो हमारे हीरोज थे, शक्तिमान, छोटा भीम, जैसे सुपर हीरोज हैं, जैसे ये भी सुपर हीरो है. थॉर है, आयरन मैन है, स्पाइडरमैन है. नाम याद आया? थॉर के पास क्या है? हैमर, मारता है जो दुनिया हिल जाती है. ठीक. तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है. ठीक. तो पहले सेकेंड ऑब्जेक्ट से बना लेते हैं. अभी तो बताया था, had his hammer been given, किसने दी? by Thor. किसको दी? to me. had his hammer been given to me by Thor भी आप बना सकते हैं. तो अभी जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया था कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब ही आनी है. कोई भी टेंस हो, हेल्पिंग वर्ब ही पहले आनी है. अब अगर चाहे तो इसमें क्वेश्चन वर्ड लगा दें, why had Thor given me, तो यहाँ पर वही had आ जाएगा. बस इतना डिफरेंस हो जाएगा. दोबारा नहीं लिख रहे हैं हम, है ना? तो क्या करेंगे? हैड थॉर गिवन मी हिज होमवर्क, हैड हिज होमवर्क बीन गिवन बाय थॉर टू मी. अब अगर हम मी से बनाना चाहे, अगर इसमें क्वेश्चन वर्ड होता तो क्वेश्चन वर्ड आ जाता है. अब अगर हम मी से बनाना चाहे तो मी का क्या होता है? फॉर्म, चेंज फॉर्म आई होता है. तो हैड लेकिन पहले ही आएगा. हैड आई बीन गिवन, क्या दिया? हैमर, क्योंकि बताया है. और सब्जेक्ट के बाद जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है पहले वो आएगा. सो हैड आई बीन गिवन हिज हैमर, किसने दी? बाय
अगर क्वेश्चन मार्क होता तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड आ जाता. Had I been given his hammer by how? Simple. So I hope you are understanding in these topics. और सारे बिल्कुल एक से हैं. रूल्स सारे सेंटेंसेस में टेंसेस में एक जैसे हैं. All the rules are alike. Only the helping verbs are changing. The main verb already has to be in third form as always. Only the helping verbs are changing with every tense. The rules of subject and objects are similar in all the kinds of sentences. So if you focus on the sentences, tense will automatically get cleared and you will be able to successfully do them. So I hope you have learned. That's all with today's episode. Do like, subscribe, and share if you think it is benefiting you in any way. Thank you very much. Bye.